हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Human right. There is a most important topic arrive a human right in the Indian Constitution. There is a most important human right in the Indian Constitution. The Constitution of India do recognize the importance of a human right and guarantees or contain a fundamental right in a part 3, which include the right of equality, right to freedom, and right against explanations, right to freedom of religions, culture, and educational right, and the right is a constitutional remandance. Article 32 give the right to be constitutional remanded in their form of original judication of Supreme Court of India from the enforcement of this fundamental right, and this is the protection of the individual against invasions of their human right. Part is here of 4 of the Indian Constitution contain directly principle of state policy, which are the principle of fundamental in a governance to be absorbed by the state in a formulations of the policy. This includes the duty of the state to the ensure of a social order for a promotion of the welfare of the people, social justice, right to work, to be education and social security, and provision for a just and humane of condition of work and promotion of interest of the weaker section. Duty to rise to the level of nutrition and the standard of living, and to be improved the public health, protection and improvement of the environment and ecological and wildlife, etc. In addition, there are fundamental duties of every citizen covering a wide range to the strength to the guarantee of fundamental right are the Article 51A. The part is a 4A of the Constitution. In addition to the Article 32 empowering the Supreme Court to enforce the fundamental right, the High Court is empowered by the Article 226 for the same purpose to exercise its powers. The primary duty of the higher judiciary to be protect and enforce the human right is their constitutional mandate. The rules of law is the basis feature of our constitutions as a judicially review. The judicial review is the most important. The role of Supreme Court of India is comparable, expanded to human right, and it has found Article 21 of the Constitutional, and the most is a fruitful is the article. In the several case of the Indian Supreme Court has said that the compensations in to be given for the violation of right under the article, such as the right to human dignity, right to healthy environment, and right to social security, and right to the protection of childhood, etc. The impact of the 1948 is a universal declaration of human right on the drafting part 3rd and the 4th of the Indian Constitution. Is a failed thought, and the Indian has access to be universal declaration of human right as well as to be both the convent and with the content of reservation. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, भारतीय संविधान में मानवाधिकार का क्या महत्व है। देखिए, भारत में मानवाधिकार के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी यहाँ पर जनता का राज है और सभी जनता के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए मानवाधिकार का होना भारतीय संविधान में बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार के महत्व को पहचानना है तथा तृतीय अध्याय में कुछ मौलिक अधिकारों को गारंटी भी दी गई है। ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं सहज अधिकार है, सर्वैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुच्छेद 32 में सर्वैधानिक उपचारों के संबंध में दत्त है, जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, यानी सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार देता है, यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इनमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का
सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सम्मिलित है तथा काम करने की न्याय, उचित एवं मानवीय स्थिति का जो है प्रबंधन, कमजोर वर्गों के हितों की प्रोत्साहन करना, पोषण एवं जीवन सतर्क को उठाना तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण परिस्थिति तथा वन्य जीवन इत्यादि की रक्षा एवं सुधार करने में के कर्तव्य सम्मिलित होता है इसमें। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दर्ज किया गया है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी और अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 32 के साथ उच्च न्यायालय के ऐसी ही शक्तियां अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। कहते उच्चतर न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकार का संरक्षण एवं उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं है और उसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। मानवाधिकारों के प्रसार में उच्चतम न्यायालय की भूमिका जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य मानवाधिकार के अंतर्गत किया है तथा अनुच्छेद 21 इसके लिए एक जो है फलदायी अनुच्छेद माना गया, यानी कि जो अनुच्छेद बनाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की रक्षा का अधिकार इत्यादि के उल्लेख जो है क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा। यानी इन सब चीज़ों के उल्लंघन करने पर जो है क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। कहते 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 के रूप में निरंतर अनुभव किया गया। भारत ने जो है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा अन्य दोनों जो प्रतिवादों के कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार भी